It's because of these selfish denominations has got those people living out there in the way they're living. They've crucified the truth and the people call it a blasphemy and they make it blasphemy rather. ये उन खुद गर्ज तंजीमों की वजह से है जिन्होंने लोगों की जिंदगी को ऐसा बना दिया है जैसा वो हैं। उन्होंने सच्चाई को सलीब दे दी है और लोग इसे कुफर के नाम से पुकारते हैं, बल्कि उन्होंने इसे कुफर करार दे दिया है। They call it fanaticism and so forth, and not knowing that they're blaspheming the very God that they go to church to serve. Therefore, I indict this bunch of clergy today. I indict this generation in the name of Jesus Christ, under the authority of God's word. You're crucifying him again. वो सच्चाई को पागलपन और वगैरह वगैरह कहते हैं और नहीं जानते कि वो उस खुदा के खिलाफ कुफर बक रहे हैं जिसकी खिदमत करने वो चर्च में जाते हैं। इसलिए मैं आज इन पादरियों पर इल्जाम लगाता हूँ। मैं खुदा के कलाम के इख्तियार से यीशु मसीह के नाम में इस नस्ल पर इल्जाम लगाता हूँ कि आप उसे दोबारा मसलूब कर रहे हैं। Notice, he's the same yesterday, today, and forever. God's word vindicated in a man. Compare the two Calvaries and their accusation. Remember, because he made himself God, we will not have this man rule over us. गौर करें, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदा का कलाम एक आदमी में जाहिर हुआ। दो सलीबों और उनके इल्जामों का मुवाजना करें। याद रखें, क्योंकि ये अपने आप को खुदा बनाता है, हम इस आदमी को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देंगे। What was the accusation that they could find in the council that morning when they crucified Jesus? That he made himself God. He was God. And he broke the Sabbath and he was the Lord of the Sabbath. जब उन्होंने यीशु को मसलूब किया तो उस नस्ल को उस सुबह कौन सा इल्जाम मिला? यही कि वो अपने आप को खुदा बनाता है। वो खुदा था और उसने सब्बत को तोड़ा। वो तो सब्बत का मालिक था। They condemned him because that he made himself God. You have no right to do this. You have no right. Our high priest, if anything is coming, come through our priest. Now compare that with the Calvary today. उन्होंने उसे इसलिए रद्द किया क्योंकि वो अपने आप को खुदा बनाता था। वो कहते थे, ऐसा कहने का कोई हक नहीं तुझे। हमारा सरदार काहिन है, अगर कुछ आना है तो वो हमारे काहिनों के वसीले ही आएगा। अब इसको आज की कलवरी से मिलाकर देखें। When God had so pleased the Father God, the Spirit, to raise up His own Son, overshadowed Mary by the Holy Spirit and brought forth a body that could serve Him and serve His purpose to Him. जब खुदा यानी बाप बहुत ज्यादा खुश हुआ तो खुदा यानी रूह ने अपने बेटे को पैदा किया। जब रूह कुछ ने मरियम पर साया डाला तो उससे एक बदन ने जन्म लिया जो उसकी खिदमत कर सके और उसके मकसद को पूरा कर सके। That God was in Christ, the fullness of the Godhead bodily in Him, reflecting what God was to the people, letting the whole world know what God wanted each individual to be, a son and daughter. तो वो खुदा मसीह में आ गया। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम हो गई ताकि लोगों में उसकी अक्कासी करे कि खुदा क्या था, ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि खुदा हर एक शख्स को इनफरादी तौर पर एक बेटा और बेटी बनाना चाहता है। He took one man and did it, and because that he didn't join with their organizational ranks, they condemned him and crucified him. Now compare that Calvary with the day. उसने एक आदमी को लेकर ये कर दिया और क्योंकि उसने उनके तंजीमी ओहदों के साथ नाता नहीं जोड़ा था, इसलिए उन्होंने उस पर इल्जाम लगाकर सलीब पर चढ़ा दिया। अब उस कलवरी का मुवाजना आज से कीजिए। Because of organizational prejudice, because of indifference between scholars who ought to know God's word and plan, because of this, God can take a little group of people that He can work through somewhere and reflect Himself, who will humble themselves to the Word, and they cannot say it isn't so. तंजीमी तसुब की वजह से उलमा कराम बेहिस हैं, जबकि इन्हें खुदा के कलाम और मंसूबा बंदी को जानना चाहिए था। इसी सबब से खुदा लोगों के एक छोटे से गल्ला को ले लेता है और इसी तरह काम करता है और अपने आप को जाहिर करता है। और जो लोग कलाम के लिए अपने आप को फरोतन बनाते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। They could not say He didn't do it.
For their congregation was witness of it. It was before them. They couldn't deny it. They couldn't deny his claims. Because the very word that they said they believed was the one who proved that he was. उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा ने ये काम नहीं किया है। उनकी जमात इन बातों की गवाही देती थी। उनके सामने ये काम हुए थे। वो इनका इनकार नहीं कर सकते थे। वो उसके दावे का इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि ठीक वही कलाम जो उन्होंने कहा था और जिस पर वो ईमान लाए थे, उसी कलाम ने उसको साबित किया था। Because God took the word that was supposed to be the Messiah and show it to a man. And they had to get rid of him. So the only way they could go on was get rid of the Messiah. And they did it through blindness and ignorance, regardless of their education. They were smart, intelligent, worldly speaking. और खुदा ने कलाम को लिया जो मसीहा बनकर आया और उसे एक आदमी के जरिए जाहिर किया, और उन्होंने उससे पीछा छुड़ाना चाहा ताकि वो अपने अपने रास्ते पर चलते रहें। इसलिए उन्होंने मसीहा से पीछा छुड़ाया। उन्होंने अपनी तालीम से कतई नजर, अपनी जहालत और अंधेपन की वजह से ये किया। दुनियावी नुक्ता नजर से कहा जाए तो वो होशियार और समझदार थे। As we compared the other night, when the light struck the rich young ruler, look what he did. He rejected a smart man. Paul, another smart man, the light struck him. What did he do? He accepted it. जैसा कि हमने एक रात इसका मुवाजना किया था, जब उस नौजवान अमीर आदमी पर रोशनी चमकी तो उसने क्या किया? उसने उसे रद्द कर दिया, क्योंकि वो होशियार आदमी था। लेकिन एक और ज़हीन आदमी पलूस भी था। जब उस पर नूर चमका तो उसने क्या किया? उसने उसे कबूल कर लिया। He forgot all he ever knew that he might know Christ. That made his life worthy of the gospel. Last Sunday night's message. मसीह को जानने के लिए उसने अपना सारा इल्म भुला दिया और उसकी जिंदगी अंजील के लायक बन गई। गुजरे इतवार की रात यही पैगाम था। There it is today. It strikes maybe some little a man is went off, had a call of God. He felt, went to some seminary and learned some creed. He must live by that creed or give up his fellowship card. आज यहाँ ऐसा ही है। हो सकता है कोई आदमी हो जिसने खुदा की बुलाहट को महसूस किया हो और किसी सेमिनरी में जाके उनके अकीदे सीख लिए हों। उसके लिए जरूरी है कि उन अकीदों के साथ चले या फिर उनकी रफाकत को छोड़ दे। If he does, he's black-marked. Nobody else will have him because once he belonged to something else and now he don't belong to it. They figure there's something wrong with that man. And they will not have him in their congregation. When the congregation are only looking for one sign, that is if he believes what they believe. अगर वो उनकी रफाकत छोड़ देता है तो फिर वो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। उसको फिर कोई अपने पास नहीं बुलाता, क्योंकि वो पहले जिनके साथ था उनको छोड़ चुका है और लोग समझते हैं इस आदमी में खराबी है और फिर वो उसे अपनी जमात में नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि उनकी जमात तो सिर्फ एक ही बात देखना चाहती है कि क्या इसका अकीदा हमारे अकीदे के मुताबिक है। If he's got a card, if he's a Methodist, if he's a card, he belongs to another fellowship or oneness or Trinitarian or whatever it might be, Church of God or in the Pentecostal ranks, all those ranks. बशर्ते कि उसके पास एक कार्ड होना चाहिए। बिल फर्ज वो एक मेथोडिस्ट है। अगर उसके पास कार्ड है, हो सकता है वो किसी दूसरी रफाकत से मुंसलिक हो, या एक वदानियत, या एक तसलीसी, या एक चर्च ऑफ गॉड, या जो कोई भी हो, या पेंतीकोस्टल का कार्ड हो, या इन सब में से किसी का कार्ड होना चाहिए। If he packs a card, they feel that the headquarters has looked him over and tested his mind and give him a psychiatrist test and see if his IQ was high enough. That he can speak before him. If he don't, they turn him down. That's right. अगर उसके पास कोई ऐसा कार्ड होता है तो तब वो मानते हैं कि हेडक्वार्टर ने इसे देख कर पास कर दिया है और उन्होंने इसे परख लिया है और एक दिमागी माहिर ने इसे चेक कर लिया है और इसका IQ भी देख लिया है कि वो उनके सामने काफी अच्छा बोल सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो उसे भगा देते हैं। ये सच है। But you see, the congregation ought to be watching the hand of the Lord. See whether God's giving him his ordination or not. That's what we ought to be looking at. But today they crucify the Son of God afresh. लेकिन आप देखें,
कलीसिया को ये देखना चाहिए कि उस पर खुदा का हाथ है या नहीं है। ये देखना चाहिए खुदा ने उसे मखसूस किया है या नहीं किया, और यही है जो हमें देखना चाहिए। मगर आज वो खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब कर रहे हैं। When a man is able, by the grace of God, be called of God, to let God reflect Himself through him. The works that I do shall you do also, He said. जब कोई शख्स खुदा के फजल के जरिए इस लायक हो तो वही खुदा का बुलाया हुआ होता है, ताकि खुदा खुद उसके जरिए अपने आप को जाहिर करे। उसने कहा, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। Notice what a day that we're living in. They take the very Calvary we can this morning, and the very reason. Now they know that was truth, but because of jealousy, prejudice. गौर करें हम कैसे दिनों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज सुबह हम कह सकते हैं वही सलीब उसी सबब से आज भी दी जा रही है। अब देखें, उन्हें पता था कि वो सच्चाई है, मगर हसद और नफरत की वजह से उन्होंने ऐसा किया। What did Jesus say to him? If I cast out devils by the finger of God, then who do you cast them out by? Let them be your judge. If I by the finger of God cast out devils. क्या यीशु ने उन्हें ये नहीं कहा था, अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूं तो फिर तुम उन्हें किसकी कुदरत से निकालते हो? देखें, अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूं तो तुम ही इसका इंसाफ करो। It's like you heard him say, "Can you prove it's the finger of God?" I'd like to heard that question asked him. They were too smart for that. Notice, because that He made Himself God, and He was God, and we will not have Him rule over us. अब आप उन्हें ये कहते सुनते हैं, क्या तू साबित कर सकता है कि तू ये खुदा की कुदरत से कर रहा है? मैं उसको जानना चाहूंगा। मैं उस सवाल को सुनना चाहूंगा जो उन्होंने उससे पूछा। वो सवाल पूछने में बहुत तेज थे। गौर करें, क्योंकि वो अपने आप को खुदा कहता था और वो खुदा था, और वो कहते थे हम इसे अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देंगे। But now the same old cry comes again. That Bible was written by man, they say. We don't have to live by that. That's God's word. It's God Himself. लेकिन आज भी वही पुरानी बात है, फिर से कही जा रही है। वो कहते हैं बाइबल इंसान ने लिखी है, हमें इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए। मगर ये तो खुदा है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा खुद है। I was talking to a man yesterday. Well, some man might have wrote that Bible. I said, yes, it was. His name, we know him as God. मैं कल एक आदमी से बात कर रहा था। उसने कहा, जरूर ये बाइबल किसी इंसान ने लिखी होगी। मैंने कहा, जी हाँ, जरूर किसी इंसान ने लिखी है। उसका नाम हम जानते हैं और उसका नाम है खुदा। It was written 4,000 years apart almost. The scriptures back from Job all the way to the New Testament, and wrote by hundreds of years apart, and was wrote by different men, and them not knowing the other, in different parts of the country, and not one word of it will condemn the other. इसको अय्यूब की किताब से लेकर नए अहदनामे तक सारे कलाम को तकरीबन 4000 सालों में लिखा गया है, और सैकड़ों वर्षों में, ये सैकड़ों अलग अलग वर्षों में लिखा गया है, और ये मुख्तलिफ आदमियों के वसीले लिखा गया है जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में लिखा गया है, और इसका एक लफ्ज भी दूसरे लफ्ज को नहीं काटता। I dare anybody to come under the blood of Jesus Christ and claim any promise in there. God's obligated to take care of it. मैं चाहता हूँ कोई भी यीशु मसीह के खून के नीचे आने की जुर्रत करे और इसमें किसी वादे का दावा करे, खुदा उसको पूरा करने का पाबंद है। But they won't do it. They'll come say, "Oh Lord, I want to do something. Give me a great gift. Hallelujah, Lord. Glory to God. I believe I got it. Hallelujah." It'll never work. You might bring forth a lot of psychology, but it won't work. मगर लोग ऐसा करना नहीं चाहेंगे। वो आकर ये कहेंगे, ऐ खुदावंद, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी नेमत दे दे। हालेलुया, खुदावंद, खुदा को जलाल मिले, मेरा ईमान है, मुझे ये मिल गया है। हालेलुया। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप चाहे इसमें जितना भी नफ्सियाती जोर लगा लें, मगर ये काम नहीं करेगा। God's got to recognize that repentance. God's got to do that. We could say a lot along that line, but I hope you're understanding. खुदा आपकी तौबा को पहले परखता है। खुदा ऐसा करता है। इस बारे में हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हैं। Look, but now they won't have the word rule over them.
I say, every one of you return back. You're baptized wrong. You're baptized in the Catholic Church. अब देखें, वो आज भी अपने ऊपर कलाम को हुकूमत नहीं करने देंगे। मैं कहता हूँ, आप में से हर कोई वापस मुड़े, क्योंकि आपका बपतिस्मा गलत हुआ है। आपको कैथोलिक कलीसिया वाला बपतिस्मा दिया गया है। Who are you to tell us that? It's not me, it's the Word. Well, I tell you, we believe, I don't care what you believe, it's what the Bible says. Well, we don't have to live by that. आप कौन होते हमें ये बताने वाले? ये मैं नहीं, ये कलाम है। मगर मैं तो आपको बताता हूँ कि हम कलाम पर ईमान रखते हैं, मगर मुझे परवाह नहीं आप क्या ईमान रखते हैं। ये तो वो है जो बाइबल कहती है, मगर हम इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। You do not, or you're under the judgment of this Bible, for whosoever shall take one word out of it or add one to it, the same will be taken out of the part of the book of life. Let him be minister, clergyman, or whoever he is. You've got to come under the rulership of this word, for it is God. The Bible says it's God. आपको कुछ करना है तो इसके मुताबिक करें, वरना आप बाइबल की अदालत के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जो कोई इसमें से एक लफ्ज घटाएगा या एक लफ्ज इसमें से बढ़ाएगा तो उसका हिस्सा किताब हयात में से निकाल दिया जाएगा, चाहे वो खादम हो, पादरी हो या जो कुछ भी हो। आपको इस कलाम की हुक्मरानी में आना है, क्योंकि ये खुदा है। बाइबल फरमाती है ये खुदा है। We won't have it rule over us. They take their creeds and denominations and their the little petty things that they believe in and has been adopted by councils of man and take it instead of God's word. वो कहते हैं मगर हम इसे अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देंगे। वो अपनी तंजीमों के अकीदों को थामे हुए हैं। ये उन छोटी छोटी बातों को पकड़े बैठे हैं और उन पर ईमान रखते हैं जो इंसानी कौंसिल ने मुकर्रर की है, और खुदा के कलाम की बजाय उनको ले रहे हैं। What did they do? They took a Barabbas, a murderer, instead of the Son of God at the day of the first crucifixion. And today they're taking some man's word, which is a lie and the way of death, and refusing to take the way of life, God's word. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक कातिल बराबा को चुन लिया था। पहली मसलूबियत के दिन उन्होंने खुदा के बेटे की बजाय एक कातिल को चुन लिया था, और आज भी ये किसी इंसान की बातों को चुन रहे हैं जो कि झूठ है और मौत का रास्ता है, और जिंदगी के रास्ते को रद्द कर रहे हैं जो कि खुदा का कलाम है। I condemn this generation and indict it in the word of the Lord that they're wrong. They're guilty of crucifixion, or trying to. Hallelujah. Crucify the Spirit. मैं इस नस्ल को पापी ठहराता हूँ और खुदावंद के कलाम में से इन पर फर्दे जुर्म लगाता हूँ, क्योंकि ये लोग गलती कर रहे हैं। ये कलाम को मसलूब करने के कसूरवार हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि पाक रूह को मसलूब करें। They call for revival everywhere. How are you going to have a revival when the word itself can't work to the people? I'd like for somebody to answer that for me. How can it do when you deny the very revival itself? ये हर जगह पर बेदारी को पुकार रहे हैं। जब कलाम लोगों में से होकर काम नहीं कर सकता, तो फिर आपको बेदारी किस तरह मिल सकती है? मैं चाहूंगा कोई मुझे इस बात का जवाब दे। ये कैसे हो सकता है जब आप खुद आई हुई बेदारी का इनकार कर रहे हैं? Well, did the prophets speak of them? Forms of godliness. Their own forms back there deny the word of life. Their own forms today deny the thing that can bring them a revival. Their creeds and forms. Yes, sir. नबी ने इनके बारे में ठीक ही कहा था। ये दीनदारी की वजह रखते हैं। उनके अपने रस्मों रवाज ने पीछे भी जिंदगी के कलाम को रद्द कर दिया था, और आज भी इनके अपने रस्मों रवाज ने इन बातों को रद्द कर दिया है जिनसे बेदारी आ सकती है। जी हाँ जनाब, इनके रस्मों रवाज और ये अकीदे हैं। They take the denomination and their creeds instead of the word. And that crucifies his word and makes his word of no effect to the people. वो अपनी तंजीम और अपने अकीदों को कलाम की बजाय लेते हैं, और इससे खुदा का कलाम मसलूब होकर लोगों के लिए बेअसर बन जाता है। When they see the word of God so vividly in just place itself, that God made the promise he would do this, and here he is doing it. And they make fun of it and get away from it. It's blasphemy. And they try to crucify the word itself. जब वो खुदा के कलाम को बहुत वाज़े देखते हैं, और फक्त जब ऐसा होता है तो ये वो है जिसका वादा खुदा ने किया था कि वो करेगा, और वो ये कर रहा होता है,
और वो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। यही तो कुफर है, और वो कलाम को मसलूब करने की कोशिश करते हैं। How do they crucify it? They can't crucify the Word no more than they can crucify God. They can crucify the body that helped God, the Son of God. They can crucify that, but they can't crucify God. वो उसे सलीब क्यों देते हैं? वो कलाम को मसलूब नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा को मसलूब नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ उस बदन को मसलूब किया था जिसमें खुदा रहता था, यानी खुदा का बेटा। वो उस बदन को मार सकते थे, मगर वो खुदा को नहीं मार सकते थे। He had to be that time on account of being the sacrifice to bring in many sons. That's predestinated to eternal life. They had to do it then, but they can't do it now. They can't do it, for the Word itself will live on. और उस बदन को उस वक्त कुर्बान किया जाना था ताकि पहले से मुकर्रर शुदा बहुत सारे बेटे अब्दी जिंदगी पा सके। इन्हें तब ऐसा करना ही था, मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कलाम जिंदा ही रहेगा। But what do they do? How do they form? What are you saying, that preacher? How are you building your platform here that they crucifying them? मगर वो क्या कर रहे हैं? वो ये किस सूरत में कर रहे हैं? फिर मुनाद साहब, आप क्या कह रहे हैं? किस तरह आप यहाँ अपने मंबर को तामीर कर रहे हैं कि वो इसे फिर मसलूब करें? They're crucifying the effects of the gospel upon the people by their creeds. Amen. Yes. That's a crucifixion. That where the public set these big morgues called churches, denominations, and draw a line of creed. वो अंजील के असर को लोगों से अपने अकीदों के जरिए मसलूब कर रहे हैं। यही मसलूबियत है कि लोग इन बड़े बड़े मुर्दा खानों में बैठे हुए हैं जिन्हें तंजीमें और चर्चिज पुकारा जाता है और अकीदे की लकीर खींची हुई है। And that the word of God can't have an effect upon it because they condemn the very things that Christ said would take place. It just don't come according to their creed. और यहाँ तक खुदा के कलाम का इन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो इन बातों को रद्द कर देते हैं जिनके बारे में मसीह ने कहा था कि वो होंगी। ये बिल्कुल उनके अकीदे के मुताबिक नहीं होती हैं। And neither did Jesus come according to their understanding of him coming. He come in the way that God sent him. And he come exactly with the word. No wonder he said he'd hid it from the eyes of the wise and prudent and reveal it to babes such as would learn. Do you understand? और ना ही उसकी आमद यानी यस्सु की आमद उनकी सोच के मुताबिक हुई। वो ठीक उसी तरीके से आया जिस तरह से खुदा ने उसे भेजा, और वो ठीक कलाम के मुताबिक आया। इसमें हैरत नहीं कि उसने कहा, तूने ये बातें अक्लमंदों और दानाओं से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। क्या आप समझ गए हैं? Oh, they have crucified the effects of the word. I got a bunch of scriptures here. I might just quote two or three of them. They crucified. You say, how do they crucify the word? When Jesus said that he's the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8, they say, in such a way he is. See? All right. हो, वो कलाम के असर को मसलूब कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। मैं उनमें से शायद 2 या 3 ही पढ़ सकूं। वो उसे मसलूब कर रहे हैं। आप कहते हैं वो कलाम को कैसे मसलूब कर सकते हैं? यस्सु ने कहा था वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। अब्रानियों 13:8। लोग कहते हैं इस तरह तो वो है, समझे? तो फिर ठीक है। And Jesus said his last commandment to the church, go ye into all the world, Mark 16. Go ye into all the world and preach the gospel. These signs shall follow them that believe. All the world to every creature. It ain't half reached yet. And his millions die every year that don't ever even heard the name of Jesus. और यीशु ने कलीसिया को आखिरी हुक्म ये दिया था और कहा था, सारी दुनिया में जाओ। मरकत 16। सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। सारी दुनिया, सारी खलक। और अभी तक तो आधी दुनिया में भी मुनादी नहीं हुई और लाखों लोग हर साल मर जाते हैं जिन्होंने यीशु का नाम तक नहीं सुना होता। So it's still the general orders. It's still the commandment of God. All the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. बस ये अभी भी सबके लिए हुक्म है। ये अभी तक खुदा का हुक्म है। सारी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
और जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। And they say that was for that generation. And they make the commandment of God of not effect to this, and they crucify the effect of the word to the people. Amen. और लोग कहते हैं ये बातें तो उस जमाना के लिए थी, और वो ऐसा कहकर खुदा के हुक्म को बेअसर बना देते हैं और वो कलाम के असर को लोगों के लिए मसलूब कर देते हैं। आमीन। Peter said on the day of Pentecost, with the keys to the kingdom that Jesus had just given him, whatever you say here, I'll say it up there. And on the day of Pentecost, they asked what they might do to receive the Holy Spirit if they was so enjoying it, watching it, others acting what they would call silly, stagger and jump and fall and act like they were drunk. पेंतीकोस के दिन पतरस ने ये कहा, बादशाह की कुंजी के साथ जो यीशु ने उसे दी थी, जो कुछ तू यहाँ कहेगा वही कुछ मैं वहाँ कहूँगा। और पेंतीकोस के दिन उन्होंने पूछा कि हम रूल कुछ पाने के लिए क्या करें। वो लोग उससे शादमान हो रहे थे, मुख्तलिफ अमल देख रहे थे, मगर लोग उन्हें पागल कहते थे। लड़खड़ाना और उछलना और गिरना इस तरह लगता था जैसे मैं के नशे में है। And they said, these men are full of new wine. But there was a man stood up by the name of Peter, who had the keys to the kingdom, and said, these are not drunken. Acts 2. As you suppose, since the third hour of the day. But this is that which is spoken of. ये देखकर लोग कह रहे थे, ये आदमी तो ताजा मैं के नशे में है। मगर उनके दरमियान से एक आदमी उठ खड़ा हुआ जिसका नाम पतरस था और जिसके पास बादशाही की कुंजियां थी, और उसने कहा, जैसा तुम सोच रहे हो, ये मैं के नशे में नहीं है। इमाल दो, अभी तो पहली दिन चढ़ा है। ये नशे में नहीं है, बल्कि ये तो वो बात है जिसकी नबूवत की गई थी। See, right back to the word again. Showing that the Spirit is still Word, and the Word is still Spirit. Yes. The Word of God. And it shall come, spoken by the prophet Joel, Joel 2:38. And it shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my Spirit upon all flesh. देखे, वो एकदम कलाम में आ गया। उसने दिखाया कि पाकरू आज भी कलाम है और खुदा का कलाम आज भी रुल कुछ है। और जैसा योएल नबी ने कहा था कि ऐसा होगा, और शायद योएल 2:38 में है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह सब आदमियों पर नाजिल करूंगा। Listen to that prophet stand there. Look at him fearless. Standing there upon that bunch and condemning them. Indicting them. उस नबी को सुने जो वहां खड़ा हुआ था, उसे देखे, वो ना डर वहां खड़ा था, उस झुंड पर फर्दे जुर्म लगा रहा था और उन्हें रद्द कर रहा था। Said, this is the scripture. This is that was spoken of by the prophet. I'll pour out my Spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. On my handmaids and maidservants I'll pour out of my Spirit. I'll show signs in the heavens above and on earth, fire and pillars of smoke and vapor. Proving it by the word that it was the word. उसने कहा, ये कलाम है, ये वो बात है जो नबी ने फरमाई थी। मैं अपना रूह सब लोगों पर अंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी अपना रूह अंडेलूंगा, और मैं ऊपर आसमान पर निशान और जमीन पर आग और धुएं का बादल और अजाइब दिखाऊंगा। कलाम ही से साबित किया गया कि ये कलाम है। And they laughed and made fun of it, and they went to judgment, and the city was burned, and they eat one another's children, and today there are scattered people throughout all the world. Showing the Holy Spirit still remains the Word of God to bring this Word to make it live. और लोग उस पर हंसे और उसका मजाक उड़ाया गया, और वो लोग अदालत में डाले गए और उनका शहर जला दिया गया, और उन्होंने एक दूसरे के बच्चों को खाया। और आज वो लोग पूरी दुनिया में तितर बितर लोग हैं। इससे दिखाया गया कि पाक रूह आज भी खुदा का कलाम है जो इसे लाकर जिंदा बनाता है। Jesus Christ was the person, man, God. Hallelujah. Amen. He was the manifestation of God. He was God in a body form to reflect the Word of God for that age. To make that age see God's promise for that age. यीशु मसीह एक इंसान था, खुदा इंसान में था। हालेलुया। वो खुदा का ज़हूर था। वो एक बदन में खुदा था ताकि उस जमाने के लिए खुदा के कलाम को जाहिर करे और वो नस्ल उस जमाने के खुदा के वादे को देख सके।
And the Holy Ghost is the same thing today. It's the Spirit of God upon the written Word trying to find somebody to reflect itself to this age. To prove that He's the same yesterday, verse St. John 14:12, the works that I do shall you also. और रूलकुस आज भी ठीक उसी रूप में है। खुदा का रूह इस लिखे हुए कलाम में है और किसी शख्स को तलाश करता है ताकि इस जमाने में अपने आप को जाहिर करे, ताकि वो साबित कर सके कि वो कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। मुकद्दस यूहन्ना 14:12, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे।